So children, here we are learning about refraction, and in refraction we come to a special condition where the light travels from denser medium to rarer medium. So when light will travel from denser medium to rarer medium, it will move away from normal. So you can estimate that angle R will always be greater to angle I. So you try to understand what I am telling, that angle R will be greater than angle I. Suppose this is 40, it should be more than 40, 45, 50, 60, whatever. So that is the most important thing. That what does that lead to? If I keep on increasing the angle of incidence, there will be one particular value when angle R will reach 90 degrees. See, if I increase it, it will come nearer to the surface. So suppose I have reached a value of angle of incidence called at the value, let us take that is equal to C. For C, the angle of refraction becomes 90. So this is known as critical angle. I will put this as angle of incidence as C. So this is known as critical angle. Critical angle. Now what is critical angle? When you are defining critical angle, what you will say? When light travels from denser to rarer medium, then that particular value of angle of incidence, particular value of angle of incidence, for which corresponding value of angle of refraction, angle of refraction is 90 degree. Refraction is 90 degree. So that is very, very important. So for glass, for example, say it is glass slab, so that is critical angle is 42 degree. यानी what did you understand कि अगर 42 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, ग्लास से अगर लाइट रे आ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा. यानी 41 है तो बाहर से निकलेगा, एयर में निकल जाएगा, और अगर 42 है तो सरफेस को टच करता हुआ निकलेगा, यानी अभी भी रिफ्रैक्शन हो रहा है. यहाँ पर अगर 30 है, 35 है तो ग्लास है अगर मान लीजिए, तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 80-85 के आसपास रहेगा. जैसे ही हम 42 पहुँचेंगे 90 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ऑलराइट, दैट विल बिकम 90 डिग्री. नाउ अगर हम 42 से ज़्यादा जाते हैं तब क्या होगा? तब उस केस में क्या होगा कि अगर एंगल आई जो है इट इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, यानी ग्लास में हम 43 डिग्री पर जैसे ही या 45 पर जैसे ही हम इंसिडेंट करवाएंगे, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, and this phenomenon is known as total internal reflection. That means if light is traveling first from denser to rarer medium, and if the value of angle of incidence is more than the critical angle, then instead of refraction, a reflection takes place, and that is known as total internal reflection. All right. तो ये पक्का. तो there are two conditions necessary for total internal reflection. Number one is light should travel from optically denser to optically rarer medium. Number two, angle of incidence should be more than the critical angle. Light should travel from optically denser to optically rarer medium, ये पहला condition. और दूसरा, angle of incidence should be more than the critical angle. That is known as that is known as total internal reflection. अब यहाँ पर मज़ेदार बात है, अगर हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइन ऊपर में इस कंडीशन में साइन 90 बाई हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब न्यूमरेटर में एंगल सी रखना पड़ेगा, साइन सी. बट साइन 90 इज़ व्हाट? साइन 90 इज़ 1. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको निकल गया, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ रिस्पेक्ट या मीडियम ऑफ कंपैरिजन आई हैव टेकन एज एयर और वैक्यूम. सो यहाँ पर 1 बाई साइन सी, यानी कहने का मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला मिल गया. व्हाट इज़ दैट फार्मूला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल. ग्लास के लिए वहाँ पर 42 रख देंगे. यानी अभी देखिए हम लोग एक और चीज़ है, कितने तरीके से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया साइन आई इज टू साइन आर, इससे निकाल सकते हैं.
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, हम लोग निकाल सकते हैं रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, और हम लोग निकाल सकते हैं से फॉर एग्जांपल हम लोग निकाल सकते हैं 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। और कुछ बातें जान लीजिए बच्चों, अगर आप हम लोग कहीं पर रेगिस्तान में जा रहे हैं तो ड्यू टू वी आर गोइंग टू डेजर्ट, देन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट जब ट्रैवल करता है डेंसर टू रेयर मीडियम में, देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक और चीज़ होता है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो व्हाट विल हैपन, इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर हम कहीं पर से फॉर एग्जांपल डेजर्ट में, हम लोग कभी कभी आपने ये वर्ड सुना होगा, कभी कभी आपने ये वर्ड सुना होगा मिराजेस। मिराजेस में क्या होता है कि जब लाइट निकल के नीचे आ रहा तो नीचे का मीडियम जो है, नीचे का मीडियम जो है से फॉर एग्जांपल जो नीचे रेयरर है ऊपर में डेंसर है, क्योंकि गर्मी के दिन में धरती के नज़दीक का एयर जो रहेगा वो रेयर होगा। तो अभी डेंसर टू रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगा तो इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, तो हमको थोड़े नज़दीक में कभी कभी अपसाइड डाउन इमेजेस फॉर्म दिखेगा अगर हम बहुत दूर से दिख रहे हैं, और थोड़ा नज़दीक आ गया रहेगा डेजर्ट जितना है उससे बहुत नज़दीक। सो दैट इज़ मिराजेस आर फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक और प्रोसेस है जिसको लूमिंग कहा जाता है। लूमिंग इज जस्ट द अपोजिट, कि हमको इन्वर्टेड के बदले एरेक्ट इमेज दिखेगा, लेकिन वो कोल्ड प्लेसेस में होता है। वहाँ पर अगर बहुत दूर से अगर रेज आ रहा है तो डेंसर टू रेयरर जब ट्रैवल कर रहा है तो इट विल बेंड एंड देयर मे बी शिफ्टिंग ऑफ द रेज, सो एन इमेज ऑन द टॉप यू विल सी। जब आप बहुत ऊंचे पहाड़ पर है और दूर कहीं पर गांव है और ठंडा जगह है तो आपको वो गांव बादलों में दिखेगा। दैट इज़ नोन एज लूमिंग, दैट इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।